ایک حقیقت ہے اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو آئین کے دائرے میں رہ کر ان کو آئین جس ڈومین کی اجازت دیتا ہے اس میں رہ کر وہ اپنے کام پر توجہ دے، تو انشاءاللہ پاکستان میں جو ہے بہتری آئے گی۔ وہ پوچھ کر بتاتے ہیں نا، اگر ڈائریکٹ یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں کہ میرا لیڈر ابھی بھی جو ہے وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہے، اس کو جو ہے اپنی بہنوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا، اپنے جو اس کے سیاسی دوست ہیں ان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، ان کی اہلیہ کو جو ہے ناحق قید میں ڈالا ہوا ہے، ان کی بہنوں پر وہاں پر زہریلا پانی چھوڑ دیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وزیر اعلیٰ کو جو واحد عوامی مینڈیٹ سے آیا ہوا ہے اس کے لیے راستے بند کیے جا رہے ہیں، وہاں وہ آتا ہے اس کے لیے لائٹس بند کر دیے جاتے ہیں، مارکیٹس بند کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے خیال میں جو آمروں کی گود سے جنتے ہیں وہ جمہوری اقدار کو پسند نہیں کرتے، اور یہ رویہ جو ہے ان کا ابھی سے نہیں پہلے سے ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ چارٹر آف ڈیموکریسی جو انہوں نے سائن کیا ہوا تھا، جسے یہ میثاق جمہوریت کا نام دیتے تھے، تو یہ ان دونوں پارٹیوں کے درمیان ہی ہوا تھا۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کونڈلیزا رائس کی جو بک ہے نو ہائر آنر، اس میں انہوں نے تمام قصہ سنایا تھا کہ بیک ڈور پر ان کے پھر بھی رابطے تھے، تو یہ اعتماد کے قابل ہی نہیں ہے، تو ان کے ساتھ بات میرے خیال میں بہت زیادہ میں نہ آپ کو تجویز دوں گا نہ کوئی ہدایت دوں گا، میں سب یہ کہوں گا کہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ سر سے لگے کان ہیں ساری سیاسی جماعتوں کے، مسلم لیگ نون کی پارٹی کے بھی، تحریک انصاف کی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کوئی ایسا سولوشن، کوئی 1 2 3 4 آپ کی طرف سے وہ اس طرح عمران خان کی رائے کو آپ کا بیسک مطالبہ ہے کہ وہ راحت دیا جائے، اس سے آگے نکل کے بھی کوئی راستہ ایسا آپ دیں گے لوگوں کو، یا ایک پیغام دیں گے کہ اس کے ذریعے اس مسئلے سے نکلا جا سکتا ہے تاکہ بحران سے نکلے کسی رالی کی طرح؟ دیکھیں جب ہم دنیا کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ گیو پیس اے چانس اور وہ ڈائلاگس کے ذریعے ہی، تو ہم پاکستان کے اندر بھی جو ہیں ڈائلاگس کی مخالفت نہیں کرتے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میرے لیڈر نے جو ہے مجھے ذمہ داری دی ہے اسٹریٹ موومنٹس کی، کہ اس کی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں کروں۔ ڈائلاگس اور مزاحمت کی جو اختیار ہے وہ علامہ ناصر عباس صاحب اور محمود چکزئی صاحب ان کو دیا ہے۔ میرے لیڈر کی طرف سے مجھے اگر جب بھی یہ اختیار دیا گیا تو انشاءاللہ میں پھر کوشش ضرور کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ 5 نومبر 2024 کو اسٹیبلشمنٹ آف انڈیا کے درمیان مذاکرات ہو رہے تھے، اور اس دوران یہ فیصلہ کیا گیا کہ 22 نومبر 2024 کو عمران خان صاحب رہا ہو جائے، لیکن آپ کے اسٹالورٹ سے یہ فیصلہ کیا کہ 26 نومبر 2024 کو 10 لاکھ لوگ نکل آئیں گے، اسٹیبلشمنٹ کے اوپر آگے بات، تو آپ اور سلمان صاحب اگر اس کا جواب دیں کہ اس بات میں کس حد تک اس دعوے میں کس حد تک چلا؟ دیکھیے یہ میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، یہ چاہے مغویاں ہیں لوگ کرتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات ٹھوس بات ہمارے سامنے نہیں تھی نومبر کے مہینے میں۔ لہٰذا یہ جو ایک پوری کہانی بنائی گئی ہے، یہ پہلے بھی بنائی گئی تھی 2023 کے حوالے سے کہ اس وقت بھی کچھ ہونے لگا تھا، لیکن کوئی ٹھوس بات کبھی ہمارے سامنے نہیں آئی۔ میرے علم میں بھی ایسی کوئی بات نہیں۔ ایک تو سیکورٹی کی صورتحال کے حوالے سے، ایک آپ کی جہت کے حوالے سے مذاکرات وغیرہ تو اس وقت ہوں گے جب آپ پریشر ڈیولپ کر سکیں گے، جو کراچی میں جس کا ہم نے مظاہرہ دیکھا یہاں دہشت گردی والی بھی بات ہے، اور یہ سوال آپ کے ایک سمپل سا سوال ہے جو پروپیگنڈا کے لیے آپ کو مطابق ہوتا ہے۔ درعدم تحریک طالبان پاکستان کی ایک دہشت گرد جماعت اور دشمن جماعت ہے، اور پاکستان کو نقصان پہنچاتی ہے، پاکستان کو آپ یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں، یہ بات
अच्छा, इस पर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं कर सकता। जो बात आपने की कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता यार ढेर सख्त है पेस्तला इकड़म मज़ीद ख़राब कर लेंगे गला खैर। बेहतर यही है मैं मुतल्लिका लोग हैं वो करीब करीब आए। दहशतगर्दी करता है वो दहशतगर्द जमात है, और दहशतगर्दी का अब जरा सच हो जाना भाई। और दहशतगर्दी को जो भी सपोर्ट करता है वो खुद दहशतगर्द होता है। तो ये बात वैसी जो है एक सियासी पार्टी को बदनाम करने के लिए और अपने जो छुपे मकासद हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसमें दो राय नहीं है कि वो दहशतगर्द जमात है। दूसरा जो आप कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, तो उसकी सबूतें देनी चाहिए। जो रियासत हैं उसको, मैं तो सुबह हूँ, वफाक में मेरी गवर्नमेंट नहीं है कि मैं इस पर जो है मुदल्लिल बात कर सकूँ कि मतलब ये हो रहा है और ये हमारे साथ सबूत है। जब मैंने ये बात की, वो ISPR साहब ने जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीच में 3 सूबों के वज़ीर आला को पता नहीं उसने ख़ुद पॉलिश शुरू की थी और इतना ज़्यादा उनकी तारीफ़ें की, और बदकिस्मती से 4.5 करोड़ सूबे के वज़ीर आला के ख़िलाफ़ उसने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियोस चलाई। तो वही मैं बात कर रहा था कि बाकी मुल्क भी जो हैं वो अफ़गानिस्तान के बाउंड्री पर हैं, लेकिन उनकी तरफ से ये शिकायत नहीं हो रही कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारा प्ली ये है कि जब हम चीख रहे थे कि इन लोगों को दोबारा आबाद किया जा रहा है, इनको आबाद ना करें, पाकिस्तान में एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को ना लाएं, और इसका डायरेक्टली इफेक्ट जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का सूबा है, और देखो पहाड़ों पर आ गए और पहाड़ों से नीचे आ रहे हैं। हमने यहाँ तक उनको बताया। साहब कब की बात कर रहे हैं आप? ये बात तो इस तरह किस साल की बात कर रहे हैं? ये मुराद सईद की तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी मौजूद हैं, वीडियोस भी मौजूद हैं। ये 2022 में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद इनकी डील हुई और इनको जो है दोबारा बात करने के लिए बाकायदा इनकी मीटिंग हुई, और वो जो है सबके सामने है। और ये मैं जो है 9 अप्रैल 2022 की बातें कर रहा हूँ। हमारी तमाम चीज़ें रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। इन्होंने हमें कहा कि ये झूठ बोल रहे हैं, प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मौजूद है, उनकी स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लेकिन आज ये तस्लीम कर रहे हैं कि हम मिलिट्री ऑपरेशन कर रहे हैं, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ करने जा रहे हैं। तो या तो ये उस वक्त झूठे थे या अब झूठे हैं, लेकिन अभी तो ये मान रहे कि हैं, तो इसका मतलब ये उस वक्त झूठे थे और ये डील कर चुके थे इनको दोबारा आबाद करने के लिए। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया। आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? यही हमारे सवालात हैं। अगर हम इनकी पुष्टपनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। नहीं, PDM की गवर्नमेंट, PDM की गवर्नमेंट। हाँ यार, फेंसिंग तो उनके ज़माने में, लेकिन मैं उनको दोबारा बात करने की बात कर रहा हूँ कि जब दोबारा लाए गए ये रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद आए। वो जो बहुत शॉर्ट टाइम था जिस वक्त आप बात कर रहे हैं कि ठीक है अप्रैल के बाद होगा, लेकिन ये प्रोसेस, ये बातचीत का तरीका है कि उनको लाके आबाद करना है, ये तो आपके दौर में शुरू हो गया था। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में नहीं, बाजवा साहब के जब था। मेरी बात सुनिए। नहीं, मैं आपको साबित करता हूँ बाजवा साहब की ख्वाहिश थी कि इनको दोबारा आबाद किया जाए। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैबिनेट ने इसको रिजेक्ट किया था और ये रिकॉर्ड पर मौजूद है। मीटिंग के मिनट्स आप देखें, उसमें हमारे कैबिनेट नूरुल्लाह कादरी साहब भी उठे थे, मुराद सईद साहब भी उठे थे, उन्होंने रिजेक्ट किया था। और वहाँ के जो उस वक्त के कैबिनेट मेंबर्स हैं, आप उससे पूछे, जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ उसके बाद जो PDM की गवर्नमेंट बनी उसके कैबिनेट ने बाकायदा इसकी अप्रूवल दी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने नहीं दी। ये जो है रिकॉर्ड का हिस्सा है। आपसे कोई अली उमीन गंडापुर जैसी विंडो
खोलने की कोशिश कोई हुई है या नहीं हुई है? नहीं कर रहे ना, वो तो मुझे दहशत गर्द बनाने में या साबित करने में लगे हुए हैं। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि कोई कहीं ना कहीं आप जाएंगे खान साहब से मिलने के कहीं लिए, ना कहीं हो से- सकता है कोई रास्ता खुले। कहीं ना कहीं से जितनी भी रास्ते ये ढूंढ रहे हैं मुझे दहशत गर्द और स्मगलर बनाने में लगे हुए तो हैं। देखें बाकी आपने खुद कोशिश की कोई? आपने कोशिश मुझे मैंडेट अभी इमरान खान की तरफ से नहीं मिली। जो असल ताकत जिनके पास है वही स्मगलर बनाते हैं, वही सियासतदान बनाते हैं, वही सियासी पार्टियां बनाते हैं, इसलिए इसमें तो कोई दो राय देखिए नहीं, सबसे हम बहस भी सबसे नहीं करते। सबसे बड़ी ताकत जो है वो मेरे अल्लाह की है, अल्लाह उससे ने ज्यादा नुमाइंदे थे, मुकर्रर कर मैं दिए। अभी उस पर भी आ रहा हूँ। जो नुमाइंदे जिनके पास असल ताकत है, मेरे अल्लाह ने जो है मेरे अल्लाह के पास ताकत है, मेरे अल्लाह से ताकतवर कोई भी नहीं है। फिर जमहूरियत में दूसरी ताकत जो है वो अवाम की है, जो इमरान खान साहब के साथ है, जो डंडे की जोर पर और बंदूक की नोक पर अपने आप को ताकतवर साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो फिरौन भी करता था, वो यजीद भी करता था, लेकिन उनका नाम निशान भी नहीं है। जिनके खिलाफ करता था, अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दी है वो अभी जो है पूरी मुसलमान दुनिया को पता है। बहरहाल इनके पास जो दुनियावी ताकत है वो है, लेकिन अवामी ताकत इससे कई ज़्यादा है। लेकिन आप इजलासों में भी नहीं जाते, अगर कहीं तो कोई स्पेस तो निकलेगी ना। नहीं, इजलास में मुझे नहीं कमांडर बुलाया। आपका मिलने के लिए आए थे, जी आए थे। तो कोई वो तो इस तरह के यहाँ सिंध में रह चुके हैं, तो मेरे ख्याल में उस वक्त भी कोई ऐसी बातचीत का आगाज नहीं हुआ या कोई मैसेज नहीं आया आपके पास नहीं कि आया। कोई स्पेस नहीं निकालते हैं? नहीं, वो जो है बहुत नरम बातें हुई, बहुत क्या कहते हैं अच्छे माहौल में बातें हुई समय, अच्छी बातों का कोई रिजल्ट नहीं है। लेकिन उसमें जो है ये बातें शामिल नहीं थी। वो भी ज़रूर पूछ कर बताएगा, वो तो कुछ नहीं कह सकता मैं। एक सवाल अब तक एक बात तय शुदा है कि जब तक पंजाब नहीं निकलेगा हम इमरान खान को बाहर नहीं निकाल सकते हैं, लेकिन पूरी तहरीक इंसाफ जो है पंजाब को मोबिलाइज करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रहेगी। अच्छा। पंजाब को किस तरह मोबिलाइज करेंगे? वहाँ का ना कारकुन बाहर आने को तैयार है, ना आवाम लीडर तो नजर ही नहीं आता है भी या नहीं। नहीं सवाल पे ऐड ऑन करें, किसी में से ग्रुपिंग है उससे कितना नुकसान हो रहा है? जो पीटीआई की अपनी पीटीआई की ग्रुपिंग, हाँ, ये ग्रुपिंग तो है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। इससे तो कोई वो आप लगता देखिए यार, ये कह रहे हैं अल्लाह करे कि ये काम करे। बंद रहने दे मेरे ख्याल में, नहीं, आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ मजीद बैठ रही। और करीब आ जाए। और करीब आ जाए। नहीं ठीक है। गर्म पानी पी ले, गर्म पानी के लिए मंगवा दे, गला साफ हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा गर्म पानी पीने मंगा दो। अच्छा, आपने क्या सवाल किया? अच्छा नहीं, ये सही हो गया, सही बोलेंगे। नहीं, बस छोड़ा, खैर बात कर, ये बिल्कुल गलत बात है। सुनेंगे यही ठीक। हाँ ये सही है। आवाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए हमेशा निकलती हैं। जब 13, 14 और 15 मार्च को ज़मान पार्क पर हमला हुआ, हम वहीं पर रहे। पंजाब जिस अंदाज में निकला और जिस दलेरी के साथ उस फस्तायत और जबर का मुकाबला किया, वो पूरी नहीं पंजाब वाले थे। मैं खुद KPK से हूँ, मैं वहाँ पर था, मैंने देखा। अच्छा, हमें फिर भी जो है वो आंसू गैस से आंसू आ रहे थे, वो इतने दलेर थे कि वो आंसू गैस से भी पीछे नहीं हट रहे थे। तो पंजाब निकलता है, पंजाब 8 फरवरी को भी निकला था, इसलिए 17 सीटों वाले जो हैं आज हुकूमत में बैठे हैं, और 180 सीटें जो हैं हमें पंजाब के लोगों ने ही दी हैं। पंजाब निकलता है, और इंशाल्लाह इस दफ़ा जिस तरह निकलेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर गया हूँ और लोगों का जोश जज्बा और जुनून, फस्तायत, जबर, और पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कबाइलों पर भी FCR के वक्त भी इस तरह नहीं होता था जिस तरह जो है ये जाली हुकूमत अभी कर रही है पंजाब की आवाम के साथ। लेकिन उसके बावजूद भी पंजाब ने मुझे वेलकम किया। तो इस दफ़ा निकलेगा इंशाल्लाह, और ताला इस तरह निकलेगा कि लोगों की नींद हराम करेगा इंशाल्लाह। पीटीआई की ग्रुपिंग का बताइए, जो पीटीआई की अपनी ग्रुपिंग है वो खुद कितना नुकसान पहुंचा रही है और उसको कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा है? देखें, जिनकी जो पूरे पाकिस्तान में 17 सीटें हों उनमें ग्रुपिंग होगी। ये जमहूरी पार्टी है, 180 सीटें जीती हैं, 80-85% पाकिस्तान के अवाम में जो है मकबूल तरीन जुमात हैं, तो उसमें थोड़े बहुत नीच चलता रहता है। आए प्राइवेट प्लेन पर अपना पब्लिक फ्लाइट आपने ली, हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया, तो आपके पास हेलीकॉप्टर जहाज़ वगैरह CM KB के पास नहीं है वहाँ पर? क्या आप हैं इसी तरह की तबीयत के? क्या आपने इस वक्त मुनासिब समझा कि ये जेस्चर देना चाहिए? नहीं जी, ये आप गाड़ी की छत पे बैठे हुए हैं कि हम बाहर निकलें, क्या कर रहे हैं? अच्छा, मैं सच्ची बात ये बताऊं कि इन प्रोटोकॉल्स में मेरी रूह तंग होती है।
یہ زیادہ جو یہ چمکی ممکی مجھے نہیں پسند. आपको कट जाते हैं आप. हाँ, मैं आवाम से कटना नहीं चाहता और मेरे ख्याल में सियासी बंदे की यही ताकत होती है कि वो आवाम के साथ इंटैक्ट रहें. बाकी जो मैं ऑप्शन था आपके पास कि आप जहाज अपना केबी का या चार्टर्ड प्लेन या हेलीकॉप्टर वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं. अच्छा, मेरे साथ तो खुद की गाड़ी भी नहीं है, चार्टर्ड प्लेन कहाँ से होगा? मेरे साथ खुद की गाड़ी भी नहीं है, सरकारी गाड़ी. अच्छा, बाकी खैर जब तक ये ना कहे तब तक हम बैठे. अच्छा, ये जो मेरे लीडर ने ऑस्टेरिटी हमें सिखाई है और पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है ज़ाया नहीं होना चाहिए, तो वही मैं जो हमारी लीडर की सिखाई हुई तरबियत है. हाँ, नेचुरली. अच्छा, एक सवाल ये था कि बैरिस्टर साहब आपको जो जिम्मेदारी थी यही मुज़ाकरात के लिए वहाँ एस्टैब्लिशमेंट के साथ, तो उसमें क्या अब तक खान साहब ने किस कब ये तो खबर तो चली ना कि खान साहब ने कहा है कि मेरे में ऐसी कोई बात नहीं. नहीं. अच्छा, ये एक और बात अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई थी जिसके ऊपर बार बार ये एचपीआर आपको खास तौर पर खाते करते हुए कह रहे हैं आप पॉपुलर बहुत हैं. आपसे प्यार होता है. अच्छा, तो उसमें सवाल ये इसमें आपसे सवाल ये कि जो मुख्तलिफ हल्कों की जानिब से आपसे या पीटीआई पे क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि खुलकर दहशतगर्दों के खिलाफ बिलखुसूस तहरीक तालिबान के खिलाफ अभी भी आप जब बात कर रहे हैं तो खुल के बात नहीं कर रहे, नाम लेके नहीं बोल रहे. यार, हम तो बंदूक नहीं उठा सकते ना, बंदूक उठाना तो किसी और का काम है. नहीं, तो आप बीजेपी की मजम्मत करते हैं आप हम एक ऑफ द रिकॉर्ड बैठ के बात करें. ये डर पीटीआई के अंदर आपके अंदर मौजूद है, इसमें कोई मुजाफे की बात नहीं है कि अगर आप पीटीआई को क्रिटिसाइज टीडीपी को क्रिटिसाइज करेंगे, हो सकता है कि वो आपको अटैक करना शुरू करें, दीगर जमातों को, इवन जेयूआई को वो अटैक कर रहे हैं, उनके लोगों को मार रहे हैं. क्या ये कहीं आप बैक ऑफ द माइंड आप लोगों के जहन में है बात कि आप क्रिटिसाइज करेंगे, उनके खिलाफ एक्शन? 1947 से लेकर 2025 तक जब किसी सरकारी इदारे के बंदे ने सबसे बड़ा झूठ बोला होगा वो ये झूठ है. हमारे वज़रा पर खुदकश हुए, हमारे वज़रा शहीद हुए, हमारे लोगों को गोलियां लगी हैं. इधर हमारा जो है अभी पख्तूनियार आया है, उस पर खुदकश हुआ है, उसका टांग अभी भी वो जो है वो स्टिक लेकर घूम रहा है. हमारा लियाकत इधर आया हुआ है, MPA हमारा पॉपुलेशन का मिनिस्टर था, उस पर धमाका हुआ है, वो जेल में था. खान साहब खुद उसके पास गए थे पूछने के लिए. हमने शहादतें दी हैं, चाहे एज अ पार्टी हो चाहे एज अ कौम हो. ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते, और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें. ये क्या पैगाम दे रहे हैं, इसको खुद पता नहीं है कि वो जो है इनको किस चीज़ की दावत दे रहे हैं. मतलब ये खुश होगा कि अगर वो हम पर मज़ीद अटैक करें, मज़ीद हमें शोहदा दें. यार, ये हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे. हम सोच रहे थे कि ये जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, तो दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि पीटीआई पर हमला करो. लेकिन एक चीज मुझे बता दें कि अफगान महाजरीन को जो भी वापस भेजा जा रहा है, इससे आप मुतमईन हैं, इसकी भी सपोर्ट करते हैं ना, अफगान महाजरीन को जो वापस भेजा जा रहा है. देखिए, जो भी नेशनल पॉलिसी होगी उसको अगर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो मजबूरन भी हमें एक्सेप्ट करना होगा. हमारा प्ली ये है उसमें कि एक माजर को, अफगानी को जो पेशावर मुजरिम अफगानी है, उसको आप लोगों ने जो है वो शिनाख्ती कार्ड दे दिया. उसको फिर जो है इलेक्शन में उसके नॉमिनेशन पेपर एक्सेप्ट हुए, उसको आप लोगों ने जो है फॉर्म 47 के ज़रिए MPA बना दिया. जो पेशावर मुजरिम अफगानी था उसको आप जो है सर पर बिठा रहे हैं. जो पाकिस्तान की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो लीगल तरीके से यहाँ आए हैं, जो यहाँ पर लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, उनको आप धक्के मार कर बाहर निकाल रहे हैं. तो यहाँ पर जो है ये गुड अफगान और बैड अफगान ये चीज़ भी चल रही है. तो पॉलिसी एक होनी चाहिए, चाहे वो तैयार है सर, खाना तैयार है. आपका जो गलत तासुर बना हुआ था वो दुरुस्त हुआ, और दूसरी बात है कि हम आपको भी समझते थे गुस्से वाले मुराद सईद की तरह आप हैं, लेकिन शायद उससे बड़े मुख्तलिफ हैं. वो हमारा सियासी